सभी को मेरा नमस्कार। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लेडी यहाँ पर बैठी हुई थी जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया था रिगार्डिंग दी सर्विस कैटेगरीज एंड द प्रोडक्ट कैटेगरी, if anybody knows her, can I ask you to call her? She just left 2 minutes ago. I don't know. Yes, of course. I saw her leaving the conference room or the auditorium, but it was just 2 minutes ago that she had stepped out. So I would request if anybody can request her to be here for the next just 5 minutes. That's all I require. He has told her to come. Okay, the reason being that I really would want to appreciate that she had taken a very bold step, and I wanted to clap for her, and I wanted you all to at least appraise her. I mean, the purpose of this session is what you all have come here for. Even I have got a presentation, but I would not be showing the entire presentation to you. I have got a list of categories that you all may be interested. Yes, please. Can I hear from the lady, please? All of you. Thank you very much. This is the first time that I have come across such a session where you were straight and you were to the point that this is what I want and this is what something that I need to be worried about. I need to take care. So I'll tell you a little bit about GeM. GeM is Government E-Marketplace, a portal which is similar to Amazon, Flipkart, Meesho, wherein you place an order and you buy the product of your own choice. Here, the buyer is a government department. Any government department. Central government, state government, autonomous body, an institute which is run by the local government, even municipal corporation or panchayati raj. If they have to procure a toothpick or a tissue paper, it has to be through GeM. सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग खरीदते हैं, मतलब ONGC अगर खरीदता है तो आपसे कहा जाता है कि GeM पे रजिस्टर होइए, तब जाके वो प्रोक्योरमेंट करेंगे और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी का ऑर्डर आपके पास पहुंचता है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन GeM. एंड मैम, GeM डज नॉट आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड. GeM asks documents to verify your thing, and once you are bidding for an RFP, you need to That is submit all the the bid is owned by the buyer. So you will need So they set up their eligibility criteria. Like for example, there's an interview, and the institute or the organization or the company who is conducting the interview, he or she would be having a certain amount of list of educational qualification or the professional qualification or any other technical expertise or skill sets which would define your eligibility, and if basis on that you get shortlisted towards the final stage. So GeM has given you the platform in the sense कि GeM ने buyer और seller को एक platform दिया है कि buyer वहाँ के अपनी खरीदी की precise requirement दे सके और आप as a seller आप अपनी eligibility, आप अपनी categories वहाँ पे बता सके. And since it's a portal for the government of India, the buyer here is the government departments, so it is a buyer's market. Buyer market, seller market का एक अंडरस्टैंडिंग सभी को होगी, बट बायर मार्केट क्या होता है कि जो बायर डिमांड करता है वही आप उनको अगर सप्लाई करते हैं, देन यू एलिजिबल एंड यू आर एबल टू गेट योर कैटलॉग पब्लिश्ड और अप्रूव्ड. ठीक, अब आपके पास आईडी कार्ड के लिए जो पेपर होता है वो एक पर्टिकुलर GSM के लिए होता है. ठीक, आप उसके सप्लायर हैं, यू गिव द फिनिश्ड प्रोडक्ट
कि ये साइज के डायमेंशंस का उस पेपर के जीएसएम को आप सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी भी सरकारी महकमे में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट वहां नहीं प्रेजेंट कर सकते। फॉरगेट अबाउट सेलिंग इट, यू कैन नॉट पब्लिश योर कैटलॉग। अब किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, अब हमें पेपर आईडी कार्ड चाहिए। अब वो क्या करते हैं, पेपर आईडी कार्ड की सारी रिक्वायरमेंट मेंशन करते हैं कि ये जीएसएम का होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, और सभी आप यहाँ पर उस आईडी कार्ड की फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर करीब करीब 40 एंटरप्रेन्योर्स हैं। फॉर यू जेम मेल फीमेल या जेंडर बेसिस पे नहीं वर्क करता। इट्स अ बिजनेस पर्पस हु इज विलिंग टू सप्लाई। ठीक, तो यहाँ आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट डाल दी, आप सभी एलिजिबल हैं, आप सभी स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर हैं उस पर्टिकुलर आईडी कार्ड के विद द जीएसएम एज अ फिनिश प्रोडक्ट। अब होता यह है कि इसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट अंधेरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 50 लाख का इन्होंने ये टेंडर निकाला। अब अगर ये एक छोटा ऑर्डर है केवल 50,000 तक का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, स्टार्ट्स विद 50,000 जिसको हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, एग्जांपल के द्वारा मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट केवल 50,000 की ऑर्डर वैल्यू तक की है, and considering the fact that all of us are registered on government marketplace as a supplier, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल बना दी है, आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल दी है, और आप ओईएम है, आपको एक वेंडर असेसमेंट करना होता है, आपने अपना कैटलॉग दिया, कैटलॉग अप्रूव्ड एंड यू आर ऑथराइज्ड सेलर ऑन गवर्नमेंट मार्केटप्लेस। 50,000 तक का वो ऑर्डर डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली दे सकती है अगर आप जेम के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। बिडिंग करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेंडर या फिर कोई दूसरा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। इट्स अ डायरेक्ट ऑर्डर। वैल्यू इज ओनली अप टू 50,000 रुपीज। अब कुछ साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जिनको ये प्रावधान दिया है कि वो इस लैब को बढ़ा सकते हैं। 1 लाख तक की वैल्यू की अगर रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर प्रोडक्ट्स, ओनली फॉर सिलेक्टेड साइंटिफिक लैब्स, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट 50,000 तक का डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप जेम के ऊपर रजिस्टर्ड है। अगला स्लैब आता है 50,000 से लेकर के 10 लाख तक। अब इसमें क्या होता है, इसमें उनको कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन ये होता है कि आप एक वेंडर है, आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है, और इन्होंने जो कोट किया हुआ है वो है 5 रुपए पर आईडी कार्ड का। अब ये भी रजिस्टर्ड है, XYZ भी रजिस्टर्ड है, LMS भी रजिस्टर्ड है। अब इनका जो कोट है वो 5 रुपए है, इन्होंने कैटलॉग में 5 रुपए मेंशन किया हुआ है। इनके जो और कॉम्पिटिटर्स है इनकी ब्रांड अलग है और इनके प्राइसेस अलग है। तो जो बायर है अंधेरी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सिस्टम के अंदर ही कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे कि 5 जो है वो सबसे लोएस्ट मिल रहा है, 5.25 ऊपर है, 5 रुपए 20 पैसे ऊपर है, और 5 रुपए 30 पैसे ऊपर है। ये कंपैरिजन सिस्टम पूरे सिस्टम के अंदर ही बना, एंड द ऑर्डर ओनली विल गो टू लोएस्ट जिन्होंने 5 रुपए कोट किया हुआ। तो यहाँ पर खेल जो है केवल कोट का है। And to answer your question, there are more than 11,200 categories on Gen of products. More than 345 categories in services on Gen. अब मैं categories की definition देता हूँ. Is there a way to sort for? Yes. The whole list is openly available on government marketplace. वो list Excel में बनाई हुई है, आपको जाकर वहां पर सिर्फ डाउनलोड क्लिक करना है, the file gets saved on the system. एक स्नैपशॉट में दिखाऊंगा सर्विस कैटेगरी का।
जिसमें कि you won't imagine what kind of services would be available on government marketplace. For example, MSME ऑफिस है, दिस इज द ऑडिटोरियम. अब एक नया ऑडिटोरियम, वो जो ओपन जगह है वहां पर उनको बनाना है इस ऑफिस को. अब इसके लिए ये एक टेंडर निकालते हैं. अब ऑडिटोरियम के लिए लाइट्स चाहिए, कुर्सियां चाहिए, पोडियम चाहिए, एलईडी चाहिए होगा, ठीक. अब इसके लिए वो टेंडर करते हैं. अब फर्नीचर बिकम्स वन कैटेगरी. फर्नीचर में क्या क्या आ गया? सोफा, देन कबर्ड्स, ये टेबल. अब यहाँ पर जो डायस टेबल है, यहाँ पे पोडियम है, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए मीटिंग रूम है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल. सो जस्ट इमेजिन कैटेगरीज फर्नीचर. लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट क्या है? इट कुड बी हंड्रेड्स, इट कुड बी थाउजेंड्स. लाइट्स, लाइट्स में बल्ब आता है, एलईडी आ गई, ट्यूबलाइट आ गई, स्विच, ऑन ऑफ वाले स्विच आते हैं, सर्किट आते हैं, सर्किट बोर्ड आता है, केबल आता है, वायर आता है. तो ये हुई प्रोडक्ट की लिस्ट. बट कैटेगरी इज लाइट्स. डिजिटल क्लासरूम, द होल सेटअप इज अ कैटेगरी. बट उसमें रिक्वायरमेंट आती है एलईडी, उसमें रिमोट फंक्शनिंग वाला प्रोजेक्टर आ गया, और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, दैट फॉल्स अंडर द प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ द डिजिटल क्लासरूम का सेटअप. तो उसी तरह से कैटेगरीज आर मोर देन 11,200. सर्विसेज विल टॉक अबाउट मैन पावर सर्विस. अब मैन पावर सर्विसेज में सिर्फ डॉक्टर्स या डोमेस्टिक हेल्प नहीं आते हैं. क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, एजुकेटेड, 10th पास, 12th पास, पीजी, मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन. So these are the list of categories that the department would shortlist or define. कि मुझे एक पियोन चाहिए 10th पास या 12th पास, ओके, with experience, without experience. So these would be falling under manpower services. There's a broader category of consultants which is required on GEM. What do we mean by consultant? Like? So category of consultant is only one, but it could be defined as per the department. कि अभी फॉर, हाँ वही एग्जाम्पल लेते हैं. अब यहाँ पर एक नया ऑफिस या कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप करना है. अब उसके लिए आर्किटेक्ट चाहिए, उसकी भी बिड जेम पर ही निकालनी होगी. इट इज अ मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अंडर द GFR रूल 149 कि एवरी डिपार्टमेंट whatever they are purchasing goods or service, it has to be on GEM. They require a consultant who would be taking care of architecture, another consultant who may be looking after works, designing, setup, engineering. So consultant is one category, but the requirement falling under this category is unlimited. So this is a scope that every participant has on government marketplace. Rather than showing it on the screen, how about opening the GEM website on your phones? You would want to see the live bids. You don't need to register. You want to see the number of products or services listed on GEM, you don't need to register or log in. You would want to see the facilitators. My name is there on Government Marketplace website, my number is given, my email address is given. You don't need to log in. The presentation for registration, the presentation for catalog updation, the presentation for everything that you require is freely available on GEM.
but you cannot download that content. Yes, cannot download, because even the buyer department, even the department who is wanting to procure, they cannot download the content that is available on government e-marketplace, because it is so restricted that it can be misused. That is the reason why it is designed in such a way that there are restrictions when it comes to the critical component or the piece of information which is available. Because it is passed by the ministry, only then it is made available for the usage of the user of the portal. So as soon as you open the page, business opportunities, you will find a section just on the first page, maybe 1 or 2 inches below the government e-marketplace main line. So if you click on business opportunities, you will get to see the products and services. So the product category is more than 11,200. You scroll down towards the right, there's a download button, and the Excel sheet is 11,200 something, and every page has got 10 rows. So there are more than 11,200 categories that you can download and view. Similarly, you can view the services as well. The registration on government e-marketplace is absolutely free, and I would recommend that you all should be doing the registration all by yourself. The reason being that kindly do not seek help of a third party or a consultant or an agent, because if you appoint them, अगर आप उनको अपॉइंट करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप काफी कुछ चीजें उनके साथ शेयर करते हैं। और अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैंने सर का रजिस्ट्रेशन किया, मैंने इनकी कैटलॉग बनाई, तो उस कैटलॉग में इन्होंने कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या एमआरपी दी है वो मुझे मालूम है। एंड सिमिलरली अगर इन्होंने मुझे अपॉइंट किया तो आई कैन मिसयूज दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड इट। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैन ने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की है जो रजिस्टर कर रहे हैं। आप जैन की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे आएंगे वेबसाइट के, वहां पर ट्रेनिंग मॉड्यूल लिखा हुआ है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में बायर और सेलर और सर्विस प्रोवाइडर इन सबके मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका स्टेप्स दिया हुआ है, वो आप फॉलो कीजिए। वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप वीडियो रेफर करके भी उसमें स्टेप्स फॉलो करके अपने आप को, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पे फंडिंग नहीं होती है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस है, आई वुड वांट टू सेटअप, मेरा स्टार्टअप है, मुझे फंडिंग चाहिए, नो। बट यहाँ पर जीएसटी रजिस्टर्ड या जीएसटी नॉन रजिस्टर्ड या स्टार्टअप किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप एक अपने घर से कुछ उद्योग कर रहे हैं, आपका बिजनेस उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, यू कैन बी अ सेलर ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आपका टर्नओवर इतना ही होना चाहिए, आपके पास इतना मैन पावर होना चाहिए या इतना कैपिटल होना चाहिए, नथिंग। इट्स योर विलिंगनेस टू सप्लाई एंड कंप्लीट द प्रोक्योरमेंट। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सारा खेल कोड का है, आप कितना मिनिमम कोड दे सकते हैं। मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स जो है स्टेशनरी काफी बड़े तादाद में खरीदते हैं। मैं आपको यहाँ पर ना रिक्वायरमेंट का स्कोप बता देता हूँ। मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा। नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन के अंदर बिलिंग हो रहा है 160 करोड़ रुपए का। नहीं बताऊंगा। फिर क्या था? 160 करोड़ रुपए किस लिए पता है? यानी गेस, मैंने हिंट दे दिया है, आप सोचिए, आप बहुत स्मार्ट हैं। 9 दिन, यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। नहीं, प्रसाद।
160 करोड़ रुपए का प्रसाद बांटा जा रहा है। एक मंदिर है, मंदिर ने बिट नहीं निकाली है, मंदिर में वो प्रसाद बना के कौन दे रहा है पता है? हाँ जी, नहीं, गवर्नमेंट, क्लोज, जेल के कैदी वो प्रसाद बना के दे रहे हैं और जेल खरीद रहा है कितने का सामान? 160 करोड़ रुपए का। अब आप बताइए कि प्रसाद में लगने वाली सामग्री क्या होती है? तो यहाँ पर स्कोप आप देखिए, अगर आपको लगता है कि इसी टाइप की रिक्वायरमेंट, ये तो जेल का रहा, ये उनकी बिड है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ काम है, अब ये सेटअप करने का, नया सेटअप करने का, यहाँ पर मैन पावर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, आपके पास है, आप वो सप्लाई कर सकते हैं मैन पावर, आप वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं जैम आपको क्यों नहीं अप्रोच करेगा? और जैम बनाया किस लिए है? मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। उमर सर ने कितनी सारी स्कीम्स बताई है, ओएनजीसी भी यही कहते हैं कि वे जितने भी सीपीएसईज हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, जैम को केवल और केवल मेक इन इंडिया को ही प्रमोट करना है। आप ऑफिसेस में चले जाइए, बड़े बड़े ऑफिसेस में, वहां पर आपको प्रिंटर्स आजकल इंडिया में मिलेंगे। मुंबई का एक वेंडर है जो हर साल या हर 3 साल में कंप्यूटर्स पीएमओ में सप्लाई करता है, नेम मैं नहीं बता सकता। पीएमओ मुंबई का लोकल वेंडर, वहां उसके सिस्टम्स जाने। वन ऑफ द डिफेंस यूनिट्स, आई विल अगेन गिव यू एन एग्जांपल, ईआरपी की रिक्वायरमेंट। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड है, यू कैन प्रोवाइड दैट सर्विस। बिड कॉस्ट इज 78 करोड़। बट ये जो रिक्वायरमेंट है ना, जब ये इंश्योर करना चाहता है कि ये रिक्वायरमेंट कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जो बायर है, डिपार्टमेंट है, उनको ब्रांड खरीदने के लिए मना किया हुआ है। दे कैन नॉट बाय अ ब्रांड। अब जैसे डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, आई गेस अचार है या अगर इनका कैटलॉग जन के ऊपर बना, हल्दी की रिक्वायरमेंट है, ड्राई हनी की रिक्वायरमेंट है। अगेन पूना में एक इंस्टीट्यूट है, 600 करोड़ की बिड निकली है अभी मई में। आई हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग द बिड। ड्राई हनी 600 करोड़, इमेजिन। So this is the scope, and the whole game is of code, and it is a little effort that you would want to put in to register yourself. Registration का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको अपना आधार नंबर देना है, पैन नंबर देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। दैट इज ऑल जेम रिक्वायर्स। व्हाई? बिकॉज जेम in itself it's a central government portal, UIDAI के साथ इंटीग्रेशन है, आपने आधार नंबर डाला, डेटा फेच हुआ, एंड ऑफ स्टोरी। ITR के लिए भी आपको सिर्फ ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर ही देना है। आपको इस साल का ITR डाउनलोड करके कॉपी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं। GST आप रजिस्टर्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल डू बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर स्लैब नहीं है कि अगर आपको बिजनेस चाहिए तो यू हैव टू बी अ GST रजिस्टर्ड बिजनेस हाउस। नहीं, कल को आप GST स्लैब में आ गए तो यू कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन। बट इवन एज अ स्टार्टअप, आपके पास कोई आमदनी नहीं है, यू कैन स्टिल रजिस्टर। कंडीशंस जो रखी होती है वो बायर ने रखी होती है। बायर क्या कहता है कि अगर सपोज कीजिए हमने वो स्लैब आईडी कार्ड का एग्जांपल लिया, उनकी रिक्वायरमेंट है 50 लाख की। उन्होंने कंडीशंस रख दी है कि भाई मुझे एक ऐसा वेंडर चाहिए जिनको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका टर्नओवर मिनिमम 10 लाख का है। ये कंडीशंस वो रख सकते हैं बिकॉज दे आर पब्लिशिंग देयर बिड, इट इज देयर रिक्वायरमेंट।
तो अगर आप उस कंडीशन में क्वालिफाई नहीं करते तो आप उनके पैरामीटर्स में क्वालिफाई नहीं करेंगे एंड पॉसिबिलिटी कि वो बिड का इंटीमेशन आपके पास ना आए। सो नॉट टू वरी, देयर मे बी सम अदर डिपार्टमेंट जो अपनी ये रिक्वायरमेंट पब्लिश कर सकता है। अब यहाँ पर जो है ये पोर्टल ऐसे बनाया हुआ है कि देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन यू एंड द डिपार्टमेंट, देयर इज नो मिडलमैन। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन किसी भी स्टेज में नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंधेरी ने ये 50 लाख की बिड निकाली आईडी कार्ड्स के लिए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनका इवैल्यूएशन मेथड होता है और जब वो इवैल्यूएट करते हैं ना उनको दिखता है सिर्फ कोड, वेंडर का नाम नहीं दिखता, वेंडर का लोकेशन नहीं दिखता। इसका मतलब कि वो किसी को फेवर भी नहीं कर सकते, उनको दिखता है केवल कोड। सिस्टम L1, L2, L3 के रैंकिंग के हिसाब से उनको कोड की रैंकिंग दिखा देता है और L1 जो आया है उन्हीं को इनको ऑर्डर देना होता है। दे कैन नॉट गो टू L2, कैन नॉट, लोएस्ट। इनका कोड 5 रुपए आया, नेक्स्ट L2 अगर 5 रुपए 5 पैसे का है तो भी वो उनको नहीं दे सकते। बट यहां पर MSME के लिए क्या है, L2 इज MSME, L1 है या नहीं है, विल कम टू दैट लेटर ऑन। अब L2 इज MSME, सरकार क्या बोलती है कि वो प्राइस रेंज L1 प्लस 15% की ब्रैकेट में है, वो आपको नेगोशिएट करते हैं कि L1 का कोड आया है 5 रुपए, विल यू बी विलिंग टू मैच दैट प्राइस, हम आपको ऑर्डर कंप्लीट जो ऑर्डर वैल्यू है उसका 15% से 25% का जो ये होता है रिजर्वेशन, उसमें हम आपको दे सकते हैं। इफ यू अग्री तो वो परसेंटेज का ऑर्डर आपको मिल जाता है, इफ यू डोंट अग्री द होल ऑर्डर गोस टू। हाँ, उसमें और ज्यादा कंडीशंस होते हैं, वो बहुत एडवांस स्टेज वाली बात है। प्राइस मैचिंग वगैरह उनको अपने क्लॉजेस जो है उसमें सिलेक्ट करना होता है। दूसरी चीज ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि L1 जो आया है वो नॉन MSC, अब L2 अगर बोलता है कि आई कैन मैच द प्राइस तो द 100% ऑर्डर गोस टू MSC वेंडर। और यहाँ पे स्कोप इज इमेंस। स्टेशनरी में क्या क्या आता है, इसकी कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप OEM में मतलब ओरिजिनल अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ही नहीं, आप यहाँ से खरीदे यहाँ बेचिए, एज अ रिटेलर, एज अ ट्रेडर, एज अ सब वेंडर, यहाँ पर उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए असेसमेंट करने की मैंडेटरी कंडीशन रखी हुई है, और जो सब वेंडर्स हैं, जो रीसेलर्स हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वेंडर असेसमेंट कीजिए, दैट इज गिवन एज ऑप्शनल। वेंडर असेसमेंट का मैं कॉस्ट बता देता हूँ। QCI पहले किया करती थी, 13,000 रुपए फीस लेती थी इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। जैम अभी लेता है 874 रुपए वेंडर असेसमेंट, विच इज ओनली फॉर OEM। मैन्युफैक्चरर है तो ही आप करेंगे वेंडर असेसमेंट, और उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल। और अगर जो रीसेलर है उनको अपने बेनिफिट के लिए करवाना है तो 234 रुपए 3 साल के लिए आपको पे करना है। 234 क्या है, कुछ नहीं। सो और जेम में कैसा होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करनी है एंड द एवेन्यूज आर ओपन। आप एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही स्टेट में, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ज्योग्राफी और डिपार्टमेंट। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि कल को अगर कोई बिड आती है, महाराष्ट्र की आई तो ओके, हंसते खेलते आप डिलीवर करेंगे, कल को लद्दाख की आ गई तब भी आपकी डिलीवरी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मना कर देते हैं तो दैट्स अ लॉस फॉर यू। लॉस इन द सेंस की मॉनेटरी लॉस तो है ही है, बट आपकी जो रेटिंग्स होती हैं देन यू गेट सस्पेंडेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट आपको ब्लैकलिस्ट या डिबार भी किया जा सकता है। आपने EMD जो दी है वो भी फोरफिट की जा सकती है, बट MSME के लिए EMD माफ है। हाँ जी,
अगर मुझे पता है कि लद्दाख के रिक्वायरमेंट है एंड आई प्रॉब्लली कैन नॉट सपोर्ट सो देन आई डोंट बिड हाँ जी एंड देन इफ आई डू बिड देन द कॉन्सेप्ट इज इफ आई एम बिडिंग एंड आई बिड इन आई एम होता है यस बट अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट तो मिलेगा सो इट इज एज सिंपल ठीक है I want to understand कि आप this is the volume of the data is so strong कि अब शायद सब कोई शीरा बनाना प्रैक्टिस नहीं कर सकता है 160 CR per साल. Now my question is, if I am a small business, my capital is limited, my funding is limited, और एक bid आती है जहाँ पर मुझे लगता है within Maharashtra I will be able to deliver it. But जब कैटलॉग बनेगा तब I will not be able to compete with this person who's already competing at 5 rupees for a 90 card. मेरा 80 card शायद 6 या 7 रुपए का होगा because मेरा business अभी start हुआ है. Then why will a buyer prefer me over that person and how can I actually match up that that data ताकि मैं भी consider की जाऊँ. Okay. The answer to your question is the category that you have bid, you have participated in being a MSME. तो हो सकता है कि L1 MSME ना भी हो, but being a MSME you have got a preference. Being a woman entrepreneur you already have a reservation. You would be getting a preference into the bid participation. The reason being जितनी bid निकलती है भले वो 50,000 की निकले 5,000 की निकले 10,000 की निकले हर एक बिड में जब वो सिलेक्ट करते हैं जो बायर होता है उनको एमएसएमई को टिक करना होता है उनको वुमेन SC/ST को टिक करना होता है स्टार्टअप को टिक करना होता है ये मैंडेटरी है बिना इनको टिक के वो आगे बढ़ नहीं सकते और अगर किसी डिपार्टमेंट ने सोचा कि हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है तो इनको अप्रूवल लेना होता है अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है पता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर अब कॉर्पोरेशन जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में आता है अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं सेंटर में आपको लगता है वो आपको बोल देंगे कि ठीक है MSME को हटा दो मत इंक्लूड करो सो एवरी बिड 4-5 हजार से लेकर के 400, 500, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ की जो बिड निकलती है उसमें हर एक बिड में पार्टिसिपेशन में इनको टिक करना होता है Right, but that does not answer my question. No, because The question is that if I am giving it for 6 rupees and she is giving it for 5 rupees, we are women entrepreneurs. Correct. We are from MSME, right? So how will I be able to match up that space because मैंने तो अपनी business start किया है मैं कैसे इस portal का फायदा? see first is the code. She has given 5 rupee code. There's a possibility that you may be within, if at all you are within the L1 plus 15% bracket. The department would approach you, you have to be L2. Only then they will approach you that this is the lowest code, will you be willing to match this price? So they will give me an opportunity. Yes, and every bid comes up with this opportunity. And as I mentioned that it is the game of code. So possibility है कि first bid में आपने इतना high price, आपने ये जो price रखा है, उसके result के बाद में आपको लगा है कि I might reduce, I should reduce. So there are chances कि next bid निकलेगी तो आप 6-7 के बदले 580, 590 पे आप कोशिश करेंगे. And high chances of you winning that as well. हाँ जी. हाँ. Now there is a complete vertical manufacturing setup, so I can never Compete or beat that price. because I am finally manufacturing from the only that margin I have to consider. Even if my price is my making will be matching to their even less, but then the official will be never understand. नहीं इसके अंदर क्या होगा कि सबके प्रेजेंटेशन में एक सब वेंडर का भी जिक्र हुआ था सो डायरेक्ट ऑर्डर माइट बी कमिंग टू योर पेरेंट कंपनी
ठीक है, अब रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, the huge requirement which he or she would want assistance or support from their sub-vendors. The quantity is huge, they may not be able to supply it in full force, so they might come to you. So you can be a sub-vendor to them. So ideally the winner of the bid is Mr. A, but since you are sub-vendor and Mr. A is unable to complete that order, he may connect to you, and that is how you can also participate. But here, if at all your price is very low, very competitive, and if the order comes directly to you rather than going to Mr. A, then you are the winner. You should be agreeing to supply. That's all. Value could be very less and could be very high.